Hello learners, welcome back to my channel that is NTU UGC Net Paper to Education. अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब नहीं किया देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज एनटीयू यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन. हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3 का ए डिवीजन. उसमें टॉपिक नंबर 7 जो है उसमें हम आज पढ़ेंगे गेस्टॉल थियरी. So without further ado, let's just start with today's session. Now listen, the term itself says gestalt. ये जर्मन वर्ड है. As you can see on the screen, Gestalt means it is a German word which means roughly in a sense that it is a shape or a form or essence or whole. कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर जो पूरी की पूरी चीज है उसको हम एक ही बारी में नहीं पढ़ते नहीं समझते लेकिन उसके पार्ट्स के जरिए हम पूरे सिस्टम को समझते हैं. एग्जाम्पल देती हूँ ह्यूमन बॉडी. You cannot make a child learn the human body on a one go. But what you will do, slowly and steadily, one after another, you will make him learn the parts, and then after, at the end, you will make him understand that how by combining all the parts together, we will be discussing about the entire whole topic that is human body. First of all, you will make him understand what is lungs, what is respiratory system, what is excretory system, what is the function of kidney, what are veins, what are WBC, RBC, and so on. And then after that, slowly and steadily, as you pass on one topic after another, at the end, you will make him understand that all this will be comprised of one particular whole topic, and that is human body. So, Gestalt is a theory which is holding very much importance in psychology subject, and here also, because ultimately education is a field wherein we have to understand as a teacher the psychology of student. Gestalt is a psychological term which means unified whole. It refers to theories of visual perception developed by German psychologists. Three psychologists are there in this theory. In the 1920s, one of the most important theories of perception is the Gestalt theory. Gestalt theory says the whole is different from some of its parts. It was developed about 1910 by Max Wertheimer and carried on by Wolfgang Kohler and Kurt Koepka at Frankfurt University. So अभी ही मैंने बोला कि तीन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये गेस्टल थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. एक थे मैक्स वर्धाइमर, सेकेंड है वुल्फगैंग कोहलर एंड थर्ड इज कुर्फ कोफका. मेजर प्रोपोनेंट्स जो है उन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं थियरी में वो पढ़ते हैं. मैक्स वर्धाइमर जो है ही डेवलप गेस्टल प्रिंसिपल्स. कुर्फ कोफका जो है उन्होंने लॉ ऑफ परसेप्शन दिए हैं. कोहलर जो है वुल्फगैंग कोहलर ही वर्क विद एप्स. एक सुल्तान करके एप था, उनके उसके ऊपर उन्होंने काम किया है और उसके ऊपर से उन्होंने बहुत अच्छी साइकोलॉजी थियरी दी भी है. सुल्तान करके जो एक एप था उसके ऊपर वो हम आगे पढ़ेंगे. एंड द नेम ऑफ द थियरी दैट्स बीन गिवन बाय कोहलर इज इंसाइटफुल लर्निंग. कर्ट लेविन ने डेवलप की है फिल थियरी. स्लोली एंड स्टडीली वी विल लर्न ईच in detail. The very first that we have to understand is Wertheimer-Kohler. In 1923, Wertheimer discussed organization of perceptual form. मतलब कि जो थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स है टॉपिक्स है उसको हम ऑर्गेनाइज करके एक होल कैसे हम समझ सकते हैं एक पूरे टॉपिक को या एक पूरे कंसर्न को. Wertheimer lays out laws central to the Gestalt movement, noting that given a number of stimuli, we tend not to perceive independent individual objects or experiences, but larger wholes separated from and related to one another. मतलब इंटरकनेक्ट करते हैं सारे टॉपिक्स को तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बनता है. The reasons for and methods of association are identified in several laws. Most important, उन्होंने कुछ थियरी फैक्टर्स दिए हैं कि कैसे आप अलग अलग चीज को एक होल बना के आप प्रेजेंट करते हो और फिर वो टॉपिक इजी हो जाता है या फिर वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी समझने में इजी हो जाता है. तो उन्होंने कोई फैक्टर्स दिए हैं that we have to understand. Let us go through that.
The factors are called as primary factors. The primary factors that determine grouping were number one, proximity. Proximity मतलब the elements tends to be grouped together according to their nearness. एक दूसरे के नजदीक अगर कोई पॉइंट्स है तो उसे proximity कहते हैं. वो हम अभी फिगर के साथ देखेंगे. सेकेंड उन्होंने बात की है सिमिलैरिटी की. आइटम सिमिलर इन सम रिस्पेक्ट टेंड टू बी ग्रुप टुगेदर. जो सिमिलर दिखे उसको आप एक ग्रुप में डालो. दूसरे जो सिमिलर लगे उसको दूसरे ग्रुप में डालो. तीसरे जो सिमिलर लगे आपको उसको एक ग्रुप में डालो. इस तरीके से सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट. फिर क्लोजर का कॉन्सेप्ट. आइटम्स आर ग्रुप टुगेदर इफ दे टेंड टू कंप्लीट सम एंटिटी. ऐसे आधी आधी फिगर दी है तो आपको समझ आ जाएगा by watching having a glance over it that though it is a half one, but if you will combine it together, accumulate it together, it will make a closure or a closed figure. Simplicity की बात की गई है. Items will be organized into simple figure according to symmetry, regularity and smoothness. These factors were called as laws of organization, which is very, very important for the NET exam, and were explained in the context of perception and problem solving. Psychology हो या कोई other particular arena of study हो, ये laws of organization जो गेस्टॉल की थियरी में आते हैं वो इतने important है क्योंकि इसी के जरिए हम perception का concept भी समझते हैं कि लोग चीजों को कैसे perceive करते हैं और problems भी कैसे solve करते हैं. One after another, let's just go through that. फर्स्ट फैक्टर है फैक्टर ऑफ प्रॉक्सिमिटी मतलब नियरनेस. प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस. The law of proximity states that when objects appear close to one another, they tend to perceive as a group. जब सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के नजदीक में है तो आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए कि ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कोई बना रहा है या फिर एक ग्रुप बन रहा है. जैसे कि यहाँ पे आपको देखो ये फिगर दी है. ये जो फिगर है वो मैं मेरी खुद की नहीं है. ये जो बुक है इन्होंने जो लिखी है वर्धाइमर ने उसमें ये फिगर्स भी दी है उन्होंने. देखो ये सारे जो पॉइंट्स है वो कितने अलग अलग है कितने डिस्टेंस पे. तो ये तो कोई फिगर दिखाता ही नहीं. तो ये हमें एक ग्रुप नहीं दिखाता. पर इसके जरिए अगर ये सारे पॉइंट्स ग्रुप टुगेदर है तो ये एक ग्रुप बन जाता है. तो ये फैक्टर को ये चीज को ये समझाना चाहते हैं कि ये प्रॉक्सिमिटी का लॉ है. लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई टॉपिक या कोई चीज एक साथ ऐसे ग्रुप में होती है तो हम उसको ग्रुप के जरिए देखते हैं. ग्रुप के तौर पे देखते हैं परसीव करते हैं. माइंड परसीव करता है और वो चीज आसानी से समझ सकते हैं. ठीक है. फिर सेकंड है क्लोजर फैक्टर. The law of closure captures the idea that when we see incomplete elements in a visual, our brain tends to fill in gaps and see it as a whole. जब भी कोई ऐसी चीज आपके सामने आती है जो कि आधी अधूरी फिगर है तो माइंड अपना उस तरीके से हमने डेवलप किया है कंडीशन किया है कि वो आधी जो स्पेस है उसको भी फिल करके एक पूरी इमेज बना देगा. जैसे कि इसको भर दो तो ये सर्कल हो जाएगा. अंडरस्टूड. तो माइंड ये परसीव कर ही देता है. ये ऐसे कर दूं मैं पूरा भर दूं दो इट इज नॉट येट इन अ लाइन फॉर्म बट बिना लाइन के भी आपका दिमाग समझ जाता है कि ये क्या ड्रॉ किया है या क्या है. तो ये आप रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी आप बोलो ये है वो सर्कल है. सो दैट इज अ क्लोजर फैक्टर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. देन थर्ड है सिमिलैरिटी फैक्टर. The law of similarity captures the idea that when we look at objects that are similar to each other, we tend to group them together. देखो ये सारे एक जैसे हैं है ना. तो आपकी आंखें या आपकी नजरें सबसे पहले ये सिमिलर फैक्टर्स पे जाएगी और उसी को फिर एक साथ देख के ये ग्रुप में है ऐसा अंदाजा परसीव कर लेगी या फिर लगा लेगी. और ये ऑपोजिट है तो उसके बारे में फिर बाद में सोचा जाता है. So we are prone to notice matching shapes, colors, and forms as opposed to looking for what it isn't similar. Our brain quickly identifies patterns faster than the separate part of the pattern. समझ आई. मतलब कि जो क्लियरली दिख रहा है सबसे पहले ही बारी में वो होते हैं सिमिलर चीजें सिमिलर थिंग्स. फिर उसको ग्रुप कर देता है अपना माइंड और उस तरीके से एक ग्रुप में वो पूरी चीज को समझता है.
फिर दूसरा स्टेप आता है कि कौन से ऑपोजिट है या कौन से अलग अलग है, वो सेकेंड स्टेप में देखते हैं। तो सिमिलरिटी मतलब सबसे सिमिलर सबसे पहले नजर में आता है और उसी कॉन्सेप्ट को हम परसीव करते हैं फर्स्टली। फिर फैक्टर ऑफ गुड प्रगनास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मैचेबिलिटी में पूछ लेते हैं। द वर्ड प्रगनास इज जर्मन वर्ड मीनिंग गुड फिगर। The law of Pragnas is sometimes referred to as law of good figure or law of simplicity. This law holds that objects in the environment are seen in a way that makes them appear as simple as possible. ये तो आंखों देखी है, देखने से ही पता चल जाता है एक ट्राइंगल एक स्क्वायर है। तो उसे कहते हैं गुड प्रगनास गुड फिगर, यानी कि एक ही बारी में कुछ आपके दिमाग को चिंता करने की या परसीव करने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, मेहनत नहीं लगती, देख के ही आ जाता है माइंड को या परसीव करने में कि ये ट्राइंगल है ये फिगर है। तो ये ऐसे ही टॉपिक भी समझे जा सकते हैं। एप्पल को देखो, फ्रूट्स कोई आपने एक बकेट में देख लिया, बास्केट में देख लिया, जिसमें मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, गुवावा है, और फिर आप क्या करोगे? उसी को अगर आपने इंट्रोड्यूस किया बच्चों के सामने, then it will be very easy for the children to understand that no, the basket is full of fruits. So today we are going to learn about the topic fruits. तो इस तरीके से भी लॉ ऑफ गुड प्रगनास काम करता है। लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन मतलब कि कंटिन्यूटी में जो फ्लो जाता है उसी को अपना माइंड डायरेक्शन में समझ लेता है। द माइंड कंटिन्यूस विजुअल पैटर्न्स। The eye continues in the direction it is going. The principle of continuity predicts a preference for continuous figure. मतलब कौन से डायरेक्शन में जाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखो ये रेड वाला पूरा इस तरीके से जा रहा है, ब्लू वाला ऐसे। So this is a good continuation, या you will perceive the things direction wise like this. So this is a, जब डायरेक्शन की बात की जाए तो उसे गुड कंटिन्यूएशन का लॉ कहते हैं। एंड द लास्ट वन लॉ ऑफ ग्राउंड और फिगर। अब ध्यान से देखो ये फिगर को, ये कभी कभी पूछा जाता है नेट में। ध्यान से देखोगे तो एक इंसान का फेस लगेगा, पर अगर दूसरे 2 मिनट के बाद सोचोगे, दिमाग को अप्लाई करोगे, तो ये आपको सेंट क्लॉक जैसा भी लग सकता है। तो आपका विजुअल परसेप्शन किस तरीके से है? फिगर ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन इज अ टाइप ऑफ परसेप्चुअल ग्रुपिंग विच इज वाइडली नेसेसरी फॉर रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स थ्रू विजन। अब तक आपने के जो विजन है, जो आपने अनुभव किया है या देखा है, उस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को सी करोगे, देखोगे। दैट इज लॉ ऑफ ग्राउंड और फिगर। फाइव फिनोमिनन, दैट इज द लास्ट वन। ये वर्धाइमर ने दिया था, फॉर्मल बॉन्ड फाउंडिंग फादर जो है गेस्टो साइकोलॉजी के, उन्होंने 1910 में, और उन्होंने बिगेन किया था एक्सपेरिमेंट फाइव फिनोमिनन का। ही पब्लिश दिस एक्सपेरिमेंट, उनकी एक जो रिसर्च पेपर था एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ परसेप्शन ऑफ मूवमेंट, उसके ऊपर। ये फाइव फिनोमिनन बेसिकली लाइट के ऊपर है। कहते हैं कि लाइट उन्होंने स्टडी रखी थी, जैसे टॉर्च से हम लाइट फोकस में डालते हैं टॉर्च ऑन करके, वैसे उन्होंने एक स्टेटिक लाइट स्टडी लाइट चालू कर दी। फिर धीरे धीरे मूव कर रहे थे, और पहले स्टेटिक थी तो आंखों को लगा नहीं ये लाइट मूव कर रही है। और दूसरी बार जब लाइट मूव नहीं कर रही, दूसरी बार जब लाइट एक्चुअल में मूव की तो भी मूव होती हुई दिखाई दे रही थी, और पहली बार नहीं की तो भी ऐसा लग रहा था कि लाइट मूव कर रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये समझाया दैट though the light is static one, but our mind is perceiving that the object is moving. इसी तरीके से रात में हम अंधेरे में जब रोड पे जाते हो और व्हीकल दूर से आ रहा है, भले ही वो स्टेटिक है तो ऐसा लग रहा है कि वो नजदीक आ रहा है, और सच में मूव कर रहा होता है तो डेफिनेटली यू विल बी इन दैट पोजिशन टू ऑब्जर्व दैट द लाइट इज कमिंग नियर टू यू। So that is five phenomenon. Wertheimer illustrated this phenomenon on an apparatus he built that utilized two discrete lights on different locations. Although the lights are stationary, stationary मतलब एक जगह पे स्थिर थी, फ्लैशिंग द लाइट्स इन सक्सीडिंग टाइम, थोड़ी देर के बाद उन्होंने वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के हिलाई भी, फ्लैश भी किया। उससे क्या हुआ? भाई आंखों की जो रेटिना है उसने समझ लिया कि लाइट्स आर मूविंग। Wertheimer worked with partner Kofka and Kohler to collect data which ultimately led to the launch of Gestalt movement. फिर ये तीनों ने मिलके अलग अलग थियरीज निकाली, प्रिंसिपल्स निकाले, उसका नाम दे दिया गेस्टॉल्ट थियरी। और इंसाइटफुल लर्निंग फिर वो सब इसी का पार्ट है। Their findings further demonstrated that the quality of the whole is different from the sum of its parts. ये उसका हाईलाइट पॉइंट है। The whole is different from sum of its parts. The explanation of five phenomena was movement perceived because the eye itself moves in response to the successive flashes of light.
लाइट तो वैसे की वैसी है, पर अपना रेटिना जो मूव करता रहता है तो ऐसा लगता है कि लाइट भी मूव कर रही है. So, with this is a wrap for today's session. Thank you so much, friends, for listening to me. Do like and subscribe my channel. That is NTNL Paper to Education. Till the next time, keep learning, keep achieving, and most important, do share these videos among your friends so that if they are also in need and help of preparing that examination, and if they are finding it difficult to find material for the net examination, then this particular videos will be a great help to them. So do help them. It's a request from my side. Thank you so much once again. Keep learning, keep achieving, and happy reading.